वाहिगुरु साहिब जीओ। फिर फाही फासै कौआ, फिर पछताना अब क्या हुआ। फिर फाही फासै कौआ, फिर पछताना अब क्या हुआ। फाथा चोग चुगै नहीं बूझै, सतगुर मिलै तां आखी सूझै। ज्यों मछली हाथी जम जाल, विण गुर दाते मुक्त ना पाल। फिर आवे फिर जाए, एक रंग रचै रहै लिवलाए। इव छूटै फिर फास ना पाए, एक रंग रचै रहै लिवलाए। इव छूटै फिर फास ना पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु दीन दुनिया दे मालक, खंडां ब्रह्मंडां दे स्वामी, सर्व कला समर्थ प्रतख गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी अंदर सभाएमान सत्कारयोग सन्मानयोग साध संगत जी, आप जी भागशाली हो जो कि इस भज दौड़ के समय विचों वक्त कढ़ के उदम करके मौसम की ना परवाह करते हुए भी गुरु के चरणों विच पहुँच के मुशक्कत कालना करते हो और सतगुरु दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। जिवें कि कल का भी विचार बावन अखरी बाणी विच गुरु नानक साहिब जी नूं एक विद्वान ब्राह्मण जिथे वो पढ़िया है, उथे एक मंदिर का पुजारी है, आए हुए लोगों नूं मूर्ति दे लड़ लाउंदा है। सतगुरां नाल ओहदी वार्ता हुई, हजूर नूं उन्हें कुछ सवाल कीते। उन्हां विच आपां कल विचारिया सी कि उस दे ये 3-4 सवाल सन कि जगत दे विच सोग क्यों है, जगत विच विछोड़े दा सहम क्यों है। मिलिया ते बड़ा कुछ है, बड़े कुछ दा मनुख मालक है, पर अंदर डूंघे थां ते एक सच दी घंटी खड़कदी रहिंदी है कि पता नहीं ये सारा कुछ किन्ना चिर रहेगा। इस करके उहदे विछड़न दा, खुश जाण दा डर रहिंदा है। इस तो अगे पीड़ा, नरक दा डर ते मौत दा डर, इन्हां सारियां दा हल किवें है ते ये चीज़ां किवें मिट सकदियां ने। क्योंकि बुनियादी तौर ते मनुख दे यही सवाल ने, मेरा दुख, संताप, विछोड़ा, मौत,
इन्हां दी समाप्ति किवें होवेगी? आप जी कोई बख्शिश करो, दसो। ते सतगुरु ने दो वचन कीते। कहन लगे, पहली गल ते ये समझ कि ये दुख संताप विजोग ते पीड़ा पैदा कितों हुंदा है, इहदी पैदाइश कितों है, इहदे बीज काहदे विच ने? ते गुरु साहब ने कहा, इहदा बीज है पाप। पाप दे अर्थ ने परमात्मा नूं भुल के ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਦੇ ਬੀਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜ ਉਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ 1 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 100, 100 ਤੋਂ 1000 ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸੀ ਧਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰੋ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 2-4 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀਆਂ ਉਸਤਤ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਉੱਥੇ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ, ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਪਏ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵਕਤ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ,
और नाल नाल रह रस के टाइम में तब्दीली की जाती। इत्थे सूरज का हिसाब उल्ट पुलट होने करके ये नहीं चलता, पर इंडिया विच तकरीबन सारे गुरुद्वारियां विच हर समय टाइम विच तब्दीली आउंदी। उहदा कारण इको है कि 24 घंटिया बाद जे सिख इको टाइम ते शाम नूं रह रास शुरू करता है उस वक्त बिल्कुल, तो जे उन्हें 10 दिन कर लिया तो 11वें दिन थोड़ा जिहा लेट हो गया। दो चीज़ां होण ख्याल रखना, एक होवे टाइम ओही, एक होवे अस्थान ओ जिथे बह के करता है, जिथे दो चीज़ां मिलदियां ने। थां भी वो होवे बिल्कुल इको थां ते करे बह के, इको थां ते करेगा तो इको टाइम ते करेगा। तो जे उन्हें महीना 2-3 महीने लगातार ला दिते उत्थे रह रस पढ़दियां प्यार नाल कम नबेड़दियां नहीं, तो वह हैरान हो जाएगा भी जे 2-3 महीनों बाद एक दिन किते आसे पासे होया ना थोड़ा जिहा, उहदे अंदर खिच पैगी भी दौड़ के उस थां ते जाए जिथे बह के वह बाणी पढ़ता है, उस टाइम ते पैगी, अगे पिछे नहीं, उस वक्त ते। उस वक्त उहदा मन उधर नूं खिंचिया जाएगा, भावें उहदे तो 100 किलोमीटर दूर बैठा उस थां तो, पर उस टाइम दे उत्ते एक बारी उहनूं लहर वजेगी उस थां ते जाण। ये क्यों दिता है? क्योंकि ये बिल्कुल उस तरह का है जिवें एक शराबी मनुख सूरज के डुबदियां शराब की लहर विच गवाचदा है। जिहड़े लोग शराब पींदे ने उन्होंने पता है जदों शाम पैंदी ज्यों ज्यों सूरज ढलदा है उन्हां दे विच शराब की बोतल का रंग घूमन लग पैंदा, उन्हां दा मन पागल होण लग पैंदा उस थां ते जाण वास्ते, उहनूं पीण वास्ते, क्योंकि उहदा टाइम हो गया। उस वक्त मन उत्थे फिर दौड़ेगा। सतगुरु ने इस मनुखी मन के विज्ञान नूं वेखिया कि जिवें पाप अपने टाइम ते इनू खिंचदा है उस तरह परमात्मा का नाम इनू खिंच सकता है। तो जे विरोध विच आदमी खड़ा हो गया तो एक दिन पाप की कंध नूं तोड़ के पार निकल जाता, तां टाइम दिता। आम तौर पर जिहड़ा मनुख शराब के नशे तो पीड़ित है उस टाइम शराब का शिकार होंदा जदों रह रास दिती गई है। जिहड़े वक्त रह रास की बाणी पढ़ी जाती उस वक्त बिल्कुल दिती गई है। तो जे कोई आदमी शराब का शिकार है, शराब उहदे तो नहीं छुटती, ये गल वखरी है। हुणे भाई साहब कह रहे सन नीयत होवे बंदे दी अंदरों, छड्डना चाहे छुटे ना, ये उन्हां वास्ते है। जे उहदे अंदर इच्छा पैदा हो गई, संकल्प पैदा हो गया, नीयत पैदा हो गई, तो फिर वो एक कार्य करे भी 2-3 महीने हिम्मत करके गुरुद्वारा साहब आके गुरु ग्रंथ साहब के कोल बह के रह रास करे। उस टाइम जदों शराब दी उहदी टाइम घर विच नहीं कर सकेगा, घर विच उहनूं हिम्मत ही नहीं पैगी, क्योंकि जिस घर दे विच वो कई सालां तो रहा उत्थे तरंगा ने घेरिया होया सारा घर, वो परत परत के उहनूं डेगदियां ने। उन्होंने एक नवी हवा चाहिए, नवे वेव चाहिए ने, नवे तरंग चाहिए ने जिहड़े उहदी सहायता कर सकन। गुरुद्वारा बनाए तां गुरु साहब इसलिए बनाया। ये ठीक है जदों आदमी उड़न विच समर्थ हो जाए फिर उन्होंने खुला आकाश चाहिए, ख्याल रखना, ये भी ध्यान विच रखना चाहिए। जदों उहदी समर्था वधन लगती है उन्होंने फिर साधना वास्ते खुले आकाश की लोड़ पैंदी है, वो फिर हद्दां दे विच उड़ नहीं सकता, उन्होंने खुला थां चाहिए उस वक्त वास्ते। इस करके जिस वक्त शराब का टाइम है उस वक्त रह रास साहिब का टाइम है। तो मैं भी बेनती करा, वो मनुखी शरीर का नशा है तो परमात्मा का नाम मनुखी आत्मा मन ते शरीर तिन्हां नूं नशे विच लैके जांदा है। ये भी नशा, दोवां विच फर्क सिर्फ इन्ना ही है, एक नशा बंदे दी मत मारदा है ते दूजा नशा मनुख की मत नूं उजल करता है। दोवां विच सिर्फ फर्क, एक नशा बंदे नूं बेहोश करता है, संसारिक शराब का नशा, ते दूसरा नशा मनुख नूं बेहोशी विचों कढ़ के एक जाग विच लैके जांदा है, होश विच आउंदा है। और किते किसी नूं भुलेखा ना लगे
क्योंकि साडे विच एक नुक्स पै गया भी जिहड़ा काम असीं पढ़िया नहीं असीं उहदे बारे सलाह देने आ। कोई विचार इत्थे दिता जाए ना, हुण वेखो कथा करने आ जां अनाउंस एक चीज़ की असीं गल करिए तो उहनूं सिद्ध करन लई गुरु ग्रंथ साहिब विचों कई शब्द हुंदे ने, पर टाइम नहीं हुंदा नाल उस सारिआं नूं कहण। हुण साडा नुक्स है भी असीं जिहड़े दायरे विच जी रहे असीं झटपट उठ के कह देना जी ये क्यों कहा तुसीं। जिवें हुण आप जी नाल रह रास दी ते नाल तुलना कर रहे नशे दी, सुभाविक शंका उठेगा गुरबाणी दी नशे नाल तुलना ये किवें हो सकदा। गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पढ़ो। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी नूं बाबर ने शराब परोसी सी, इतिहास कहंदा है। और जदों गुरु साहिब नानक मते गए, नानक मते दी धरती ते जिहड़े सिद्ध सन योगी सन, वो शराब की वरतों करते सन ध्यान लाउण वास्ते। ध्यान की वरतों शराब की करते सन भी ध्यान टिक जाए। ये बहुत लंबा विषय है, क्योंकि जिहड़ा शराब है वो मनुख के दिमाग के जिहड़े करोड़ां सैल ने उन्होंने डैड करता है, बंद करता है, जिन्हां विचों ख्याल निकलते हैं लगातार ख्याल निकली जाते हैं। पर वो आरजी तौर पर थोड़े वक्त वास्ते बंद कर देंदा है, तो फिर बाद विच सवेरे जदों आदमी उठदा उहदा संतुलन विगड़ जाता सारा मन का। उहदे अंदरों कई नुक्स पैदा हो जाते उहदे मन विच, दिमाग विच। पर जिहड़ी बाणी है, जिहड़ा नाम है, जिहड़ा ध्यान है, जिहड़ा सिमरन आप जी करदे हो, जे गुरु किरपा कर दे तां टिक जाए सही तरीके नाल, बाण आ जाए, ये गल गुरु दे हत्थ विच है। फिर उहदे तो बाद की हुंदा भी वो शराब ने ते सैल बंद कीते सन। ये नाम जिहड़ा है उन्हां सैलां नूं ठीक ढंग दे नाल असैंबल करदा है, अंदरों सैटिंग करदा है मनुख दे सारे शरीर दी। तुसीं कदी वेखना जदों बाणी विच मन लगेगा ना, मनुख दे शरीर विच अपने आप आसन बनते जाणगे। जिवें वो ढिला जा बैठा है, जे ध्यान लगा उहदी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो जाएगी, उन्हें करना उसनूं सीधा। जिहड़े गुरमुख बाणी पढ़न वाले उन्होंने पता भी जे थोड़ा जिहा शरीर विच दलिदर होवे, थोड़ा जिहा बाणी पढ़न ते अखां खुलण लग पैंदियां उन्हां दी। इतों तक भी शरीर दे विच हरकत हो के दस दिए कि नाम तेरे शरीर की हर एक नाड़ी नूं सिद्धियां पिया करदा। पर यह समा लगन तो बाद हुंदा, पहला नहीं। पहला तो सगों नींद आउंदी। इस तरह गुरु साहब ने जिहड़ा सानू नाम का नशा दिता है, उत्थे मजलिस शब्द वरत्या गुरबाणी दे विच। भाई गुरदास जी ने साकी शब्द वरत्या। साकी दे अर्थ ने प्याला पियाउण वाला वरतावा, जिहड़ा शराब वरताउंदा है। और गुरु नानक साहब ने बाणी दे विच एक बचन किया है, जिहदे विच वो कहंदे है वो भी शराब जिहड़ी झूठी है ते बंदे दी मत मारदी है, ते एक वो शराब है जिहदे विच गुड़ नहीं पैंदा, उहदे विच सच पैंदा है। ये शब्द आउंदा गुरबाणी विच। आप जी पढ़ सकते हो, सच सुरा गुड़ बाहरा। सुरा दे अर्थ ने शराब। सच्चा नाम सुरा दा अर्थ शराब है, इहदे अर्थ बनते हैं। पर नाल कह दिता गुड़ बाहरा, गुड़ तो बिना बनता, उहदे विच गुड़ नहीं पैंदा संसार वाली शराब वाल। जिस विच सच्चा नाम, जे उस सच यानी कि अमली जीवन दे विच कोई मनुख सच की शराब पीण दा आदी हो जाए, तो एक ऐसी होश ते दलेरी विच चला जाता है कि परत के उन्होंने किसी की परवाह नहीं रहिंदी। कबीर साहब का एक शब्द मैं छोटा जिहा मेरे सामने आ गया, लंबा शब्द है, वैसे समा उधर चला जाएगा सारा, जिहदे विच एक योगी नूं कहंदे ने अचरज एक सुनो रे पंडिया अब किछ कहन ना जाई। सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे त्रे भवन मेखली लाई। राजा राम अनहद किंगरी वाजा जा की नाद, जा की दिष्ट नाद ने विलागै। भाटी गगन सिंघिया अर चुंगिया कनक कलश एक पाया। तिस मैं धार चुवै अत निर्मल रस मैं रसन चुआया। ये हुण वो रस मैं रसन चुआया दा अर्थ शराब कढ़न वालियां दी उदाहरण दे रहे हैं। भाटी गगन, गगन दा अर्थ है सिर। कहंदे जिवें एक शराबी शराब कढ़न लग्या भट्ठी बनाउंदा है ना, मैं अपने शरीर नूं भट्ठी बना लिया, सारे शरीर नूं। भाटी गगन, गगन दा अर्थ वैसे सिर है।
ਸਿੰਘਿਆ ਅਰ ਚੁੰਗਿਆ ਇਹ ਦੋ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਨਕ ਕਸਲ ਕਲਸ਼, ਕਲਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਭਾਂਡਾ, ਕਨਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੋਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਭੈੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਬਿਰਤੀ। ਭਾਠੀ ਗਗਨ ਸਿੰਘਿਆ ਅਰ ਚੁੰਗਿਆ, ਕਨਕ ਕਲਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਮੈਂ ਧਾਰ ਚੁਵੈ ਅਤ ਨਿਰਮਲ, ਰਸ ਮੈਂ ਰਸਨ ਚੁਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੋ ਬਾਤ ਅਨੂਪ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਪਿਆਲਾ ਸਾਜਿਆ। ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਗਲਾਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀ ਕਰ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਏਕ ਜੋ ਬਾਤ ਅਨੂਪ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਪਿਆਲਾ, ਪਵਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਵਾਸ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਏਕ ਜੋ ਬਾਤ ਅਨੂਪ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਪਿਆਲਾ ਸਾਜਿਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਲੇ ਨਾਲ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਚੌਧਰੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਏਕ ਜੋ ਬਾਤ ਅਨੂਪ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਪਿਆਲਾ ਸਾਜਿਆ। ਤਿਸ ਮੈਂ ਤੀਨ ਭਵਨ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜੋਗੀ, ਕਹੋ ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੋ ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੰਗਾਰਨੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭੈਤਾ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਟੱਕਰ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀਮਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਮਦ ਹੈ, ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਝਿੜਕਿਆ, ਸਰਮਦ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਕੰਬਲ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੰਬਲ ਲੈਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਢੱਕਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਆਦਮੀ ਗਏ, ਸਰਮਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਕੰਬਲ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਮਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਕੰਬਲ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਰਹੀ। ਸਰਮਦ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕੰਬਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਫਿਰ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਉਤੋਂ, ਸਰਮਦ ਫਿਰ ਨਗਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਲ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੋਲ ਨੰਗਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ रुक गया तो उन्हें झिड़क के कहा भी सरमद तेनू मैं कपड़ा दिता है, तू उत्ते क्यों नहीं लिया? तेनू पता नहीं तू नमाज पढ़न जाना? इस कपड़े नू उत्ते लै, कंबल नू। ते सरमद ने सच का नशा किया सी। उन्हें क्या औरंगजेब उत्ते किवें लवां? इनू चुक के वेख दे थले की है। उन्हें क्या थले की है? कहन लगा तेरे ऐब, तेरे गुनाह। कहंदा मैं समझिया नहीं। कहंदे तू अपने बाप नू मारिया ना, भैन नू भी मारिया, तू भरावां नू भी मारिया राज वास्ते। उन्हां दे सिर पए ने इस कंबल दे थले, चुक के वेख ले। कंबल विछिया होया, वो कहंदा इहदे थले, कंबल दे थले सिर, कहंदे चुक के वेख। कहंदे औरंगजेब ने पल्ला चुकिया, उन्होंने थल्लियों अपने प्यो का, भरावां का, भैन का सिर दिसिया। ये फकीर की अजमत सी। विखा दिता उन्हें। हथ विचों कंबल डिग पिया औरंगजेब दे। ते सरमद ने कहा सी औरंगजेब दस हुण मैं कंबल नाल अपना शरीर कज्जा कि तेरे गुनाह कज्जा, दोवां विचों एक काम दस दे। तू किहड़े कपड़े पा के फिरना है? किहड़ी माला तेरे कोल? किहड़ा चोला पाना तू? इन्हां कपड़ियां ने तेरी इज्जत नहीं ढकनी। इसे नूं गुरु साहब ने कहा कि नंगा दोजक चालिया तां दिसै, खरा डरावना कर औगण पछोतावना। जिस मनुख दे अंदर औगण ने, गुरु तो बिना कौन ढके। इस करके सच दी सुरा, नाम दी सुरा। ते कबीर साहब कहते जिन्हां ने पीती वो बेपरवाह हो गए सरमद वर्गे। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया, तीन भवन में एको जोगी, कहो कौन है राजा। वो फिर पुछते फिरते ने है कोई राजा साढ़े सामने आने वाला। यही कारण से कोई सूलियां ते चढ़ गए, कोई तत्ती तवी ते बह गए, किसी ने चांदनी चौक में शहादत दी, कोई नीहां विच खलो गए। गल फर्क सिर्फ इन्ना सी, एक वो सन जिन्हां झूठा शराब पीता सी ते दूजे वो सन जिन्हां ने सच दी सुरा पीती सी। इस करके सतगुरु नानक देव जी नूं बाबर ने भी ये शब्द कहे सन, पर हजूर ने क्या ये झूठी है तेरी शराब, जो तेरी चिंता नहीं ला सकी, जो कुछ घंटिया वास्ते तेरी चिंता नूं दूर कर दी है ते परत के दुगने गम दे विच डेग जांदी है। ये कादी शराब होई? आ तैनूं पिआउने आ, मरण तो बाद भी लएगी नहीं। सतगुरु ने योगियां नूं भी कहा, क्योंकि योग मत का बहुत वड्डा एक हिस्सा अपने ध्यान नूं टिकाउण दी खातर शराब की वरतों करदा सी, नशे की वरतों करदा सी। हजूर ने इन्हां दा विरोध किया ते सच दी शराब, सच दा नशा पीण वास्ते बाणी विच प्रेरित किया है। अज दे शब्द विच आपां समझण दा यतन करिए। मनुख जिस नशे का शिकार हुंदा है, मैं गल अगे चला गया सी नितनेम तो, टाइम एक बहुत वड्डी स्थिति है। स्थान ते समा, ਜਿਹੜੀ भी साधना धार्मिक करनी है, गुरु साहब ने संसार के उस खड्ड विचों कढ़ण वास्ते सानू, जिथे असी डिगे हुन्ने आ, जे कोई मनुख नशे का शिकार है, जे इन्हां दोवां समयां दी थोड़ी जी भी संभाल कर लै, जे वो शाम नू उस वक्त गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच आके रह रास सुनना शुरू करदा है ते एक दो महीनों दे विच बाणी की बरकत वरतेगी। उहदे दिमाग दे विचों शराब वाले किरम नष्ट होने शुरू हो जाने, क्योंकि आदमी जिहड़ी शराब पींदा है वो अंदर किरम पैदा कर देंदी शराब दी। वो फिर दौड़ते ने उस टाइम ते, भजदे ने, उन्होंने खिच पाउंदे ने। ते जदों आपां बाणी पढ़ने आ जां नाम जपने आ ते खास करके गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच बह के शब्द फिर उन्होंने तोड़ते हैं, अंदरों खत्म करी जाते हैं। उन्हों दी आदतां बनदियां। सच जानो साड़ियाँ जड़ियाँ आदतां ने वो कलियां ख्याली नहीं, वो फिजिकल ने। उन्हों दे स्पैशल सैल ने साडे दिमाग दे अंदर, जिन्होंने बाहरली साधना दे नाल तोड़िया जा सकता, खत्म किया जा सकता। इस करके ज्यों ज्यों असी सियाणे होवांगे, ज्यों ज्यों साडी उम्र वधेगी साडी कौम दी, सानू पता लगेगा भी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी बहुपक्षी विज्ञानक भी है ते मैडिकल का काम भी करदी।
ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2 ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਾਹੀ ਫਸ ਹੈ ਕੌਵਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਨਰੁਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪਣਾ, ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਨੀ, ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾਮ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸੰਘਣੀ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਾਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, 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 ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ। ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ। ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵਣੀਆਂ, ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵਣੀਆਂ, ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵਣੀਆਂ, ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵਣੀਆਂ। ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ 21 ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ। ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਲੱਖ
लख लख गेड़ा आखी है, लख लख गेड़ा आखी है। जिन्नी लखां वारियां सी संसार नूं दोहराया, जदों ये बार बार दोहराई उहदे नाल टकराएगी तो उन्होंने तोड़ेगी, उन्होंने भन्नेगी, मन की शक्ति नूं तोड़ेगी। जिस दिन वो टुट गया फिर एक कारज सिरे चढ़ेगा। पर जे कोई इन्नी समर्था गुरु का हाथ सिर ते होवे, सतगुरु दे बचन वार वार है जीवन विच, फिर शब्द है, फिर फाही फस है कौआ। ये मन रूपी कां परत के फिर उस गंदगी विच क्यों फसदा है? क्योंकि वह गुलाम हो गया वार वार। और इतों तक हजूर सच्चे पातशाह कहंदे फिर पछताना अब क्या हुआ। हुण पछतावा है, क्योंकि हुण वो ज्यों ज्यों इहदे विच फसदा जांदा त्यों त्यों संसार फिक्का हो जाता। भोग की एक प्रवृत्ति है, संसार दे जिहड़े रस ने उन्हां दा एक विग्यान है। उन्होंने जिन्ना चिर ना भोगो वो रसदायक, जदों उन्होंने भोग लवो बेरस फिक्का है। फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पछतावे तो बिना कुछ नहीं। अब क्या हुआ, हुण गुरु तो बिना तू कला की कर सकेगा, जिन्ना चिर गुरु तेरी सहायता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ नहीं करदा। फाथा चोग चुगै नहीं बुझै। हुण हालत ऐसी बन गई है भी जाल दे विच पै के भी बंदा चोगा चुगी जाता है। जिवें पंछियां नूं फड़न लई चोगा वगाईदा ना, ते वो जाल दे विच फसे हुए भी चुगी जाते हैं। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि मन जदों इन्नी वारी संसार विच फस चुका है, फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ समझौता कर लेंदा, ਉਹਦੇ विच फसिया होया भी फिर परत परत के माया दे चोगे नूं चुगी जाता है। पर सतगुर मिलै तां आखी सूझै। जे पूरे गुरु का मिलाप होवे ते अख खुले अंदरों दिस पवे भी आपां किहड़े राह ते जा रहे। पूरा गुरु अपनी बख्शिश का नेत्र देवे सानूं, अख देवे। फिर कहते हैं सतगुर मिलै तां आखी सूझै, ज्यों मछली फाथी जम जाल। जिवें एक मच्छी जाल दे विच फस जाती है, उस मास के टुकड़े ते प्रेरित होके बिन गुर दाते मुक्त ना भाल। हुण कहंदे तू एवें जोर ना लाई, कला तेरे वस की गल नहीं। बिना गुरु तो तेनों इत्थों कोई छड़ा नहीं सकेगा, कोई नहीं छड़ा सकता, क्योंकि तू यतीम हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, तेरी समर्था नहीं। इसलिए अरदास सिੱਖੀ ਦਾ तुर है। गुरसिख अरदास ते तुरदा है। अरदास बड़ी वड्डी एक ऐसी कला है जिहड़ी जप तप तो भी वड्डी, ख्याल रखना, पर किसी नूं करन दी जाच आ जाए। अरदास के अर्थ ने तुहाडा कनैक्शन सीधे डायरैक्ट सुपर पावर नाल हो गया। हुण उन्हें सहायता करनी, दरवाजा खोल दिता, बाहरों सहायता लई। जे कोई असीं मुशक्कत आप करने अपने तौर पर कल्ले, वो सिर्फ असी छोटी जी बूंद है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई बहुती ताकत नहीं। अरदास एक ऐसी चीज़ है जो साडे ते गुरु विच कनैक्शन कायम करती है और सतगुरु नूं साडे जीवन में सहायता करने वास्ते समा प्रदान करती, राह खोलदी। इस करके सिੱਖੀ ਦਾ नाम भी अरदास नाल जुड़िया होया, तां नाम मंगिया जाता है। जिथे जपदा है ना सिੱਖ, नालों नाल मंगदा है। ਉਹਦਾ कारण है भी कला सिੱਖ दा जपिया काम नहीं दिंदा जिन्ना चिर गुरु सहायता ना कर। इस करके कहते बिन गुर दाते मुक्त ना भाल, फिर आवे फिर जाए। इस तरह तू फिर आउंदा जांदा रहेगा, पर कामयाबी नहीं होगी। एक रंग रचा रहे लिवलाए, पर जेड़े लोग एक वैगुरू दे रंग विच प्यार विच रच जाते हैं, लिव लग जाती उन्हां दी। इव छूटै फिर फास ना पाए। इस तरह जदों सतगुरु सहायता करन, किरपा करन ते सिख मुशक्कत करे, जिथे जाके दोवां दा जोड़ पैंदा है, उत्थे फिर छुट्टण दे दरवाजे खुल जाते हैं। मनुख छुट सकता है, छुटकारा हो सकता है। पूरे गुरु की बख्शिश ते सिख की नीयत का जिथे मेल हुंदा है, उत्थे गुरसिੱਖੀ आरंभ हुंदी है। आओ आपां प्यार सहित एक दो मिनट वास्ते जुड़िए। सारियां ने प्यार सहित एकाग्रचित हो के, कोई भी रसना खाली ना रहे और सीधे होके बैठो। ये सब तो जरूरी ध्यान विच जदों आप जी बैठते हो, चौंकड़ा मार के पूरी तरह ध्यान स्थित होना होवे,
ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਧਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੀਏ। ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।